Our top focus: Indian labourers working for a contract firm in Kuwait are appealing for help after some of their fellow workers were taken into custody over allegedly killing 2 Egyptians over there. Around 20 to 25 Indian labourers have been taken into custody by the police in Kuwait for the death of those 2 Egyptians. Now, several of their colleagues are saying that they are being hounded. These Indians mostly belong to Punjab. They're alleging that they are not being given food and also being deprived of other amenities. This is a Headlines Today exclusive. Remember, we brought you this story just about an hour back. First, these are helpless laborers who are working in a contract firm in Kuwait, and they are being accused of killing those 2 Egyptians. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ जल्द से जल्द हमारे जो आदमी पकड़े हुए हैं तो पुलिस वाले हैं और रात को आदमी को उठा के लेके जाते हैं पता नहीं चलता कब आते हैं कब आदमी को उठा के लेके जाते हैं और हमारे आदमी का कुछ भी पता नहीं है कौन से वो उनको उधर लेके गए पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं बता भी नहीं रहे कुछ और हमारी कोई भी हेल्प नहीं हो रही है मैं आपको बताता हूँ पहली बात तो ये है हमको उनका जुबान नहीं आता जो कंपनी का जो जितना भी आदमी है कंपनी का वो सब आरपी लोग हैं ठीक है उनको कुछ भी जो हमारे जिसके साथ जो बात हुई है वो मसर के लोग हैं मिस्त्री है वो और जो सुनवाई हो रही है ज़्यादा सबसे उनकी हो रही है हमारे आदमी को कोई पूछ नहीं रहा और हिरासत में लेके गए थे 2-3 इधर से अभी 17 आदमी है उधर जो है उधर हिरासत में है 17 आदमी है उनको कोई भी मालूम पता नहीं है कितना कुछ भी कोई बताने को तैयार नहीं है और दूसरी बात कंपनी ऐसे नहीं है कंपनी को हम बात क्या करें उनसे उनको अरबी आती है हमको आती नहीं ना ही कोई आया है इधर बात करने भी कोई भी नहीं आया और 3-4 दिन से खाना किसी ने सो के नहीं देखा कोई भी गाड़ी आता है इधर रात को पूरा आदमी उठ के बैठ जाता है कि शायद पुलिस वाला आ गया ऐसे होता है तो अभी हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है सरकार को जो भी मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री है सबको यही दरख्वास्त है हमें यहाँ से जल्द जो आदमी हमारे फंसे हुए हैं पुलिस स्टेशन में और जो इधर हमको जल्द से जल्द इधर से निकाला जाए कम से कम इंडियन 600 आदमी है इधर इंडियन अरेस्ट का खतरा नहीं है हमको अपनी जान जाने का भी खतरा है वो लोग पागल हैं वो कभी भी आ सकते हैं इधर मसरी लोग हैं ना जो और हमें अपनी जान का खतरा है बस हमारे इधर हम कुवैत में तकरीबन 700 आदमी है जी और बुधवार को हमारे मिस्त्रियों ने पंजाबियों पर अटैक किया था और हमारे पंजाबियों को काफ़ी मतलब जख्मी कर दिया और बुधवार रात को इधर से पुलिस वाला आया और अपने पंजाबी जो हॉस्पिटल में जो जख्मी हुए थे उनको हॉस्पिटल में लेकर गया और जो बाकी आदमी 13 आदमी को लेकर गया इधर से सुरता इंक्वायरी के लिए और जो हॉस्पिटल में और इंक्वायरी के लिए गए हैं उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला कि कहाँ है वो और हमें इधर से कैंप हमारा पूरा बंद किया हुआ है हमें बाहर भी नहीं जाने देते और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है वो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पासपोर्ट वगैरह वो कंपनी के पास है All right, those were 2 laborers that we connected earlier on, Gurmesh and Saurabh. We are expected to be joined in by Gurmeet in a short while from now. But let's also tell our viewers that the MEA has in fact reacted. Sources have told Headlines Today a while back that they are seeking more information on this case. A desperate appeal coming from the laborers in Kuwait to not only the Chief Minister of Punjab but also Prime Minister Narendra Modi, seeking help. They want to be evacuated from that area as soon as possible. Jugal Purohit, special correspondent, joining me right now in the studio. Jugal, the MEA's reaction coming in quite swiftly, but what can be expected at this point in time? Just a few weeks back, months back, we saw how those Indian nurses were stranded in Tikrit, and it took quite a while for the authorities to get them back.
It's correct. In fact, if one has to look at the MEA's response, it can hardly be described as being swift, because this is a situation that's been building for several days now. What we now understand from the Ministry of External Affairs is that they will be, in fact, seeking a report on the same, which essentially implies that they do not, as of now, have any information or report on this from their embassy in the city-state of Kuwait. Once that report comes in, it will be discussed with higher authorities, the minister perhaps, and only then a formal stand will be taken by the government of India. And for a problem which has been going on for a few days now, it's extremely tardy, but the MEA still promises that they will be looking into it, and the embassy there has been activated. Right, Jugal, give us a sense of what's the procedure, how is this communication going to be taken forward, because it is only after headlines today broke this news that the MEA also came to know about it. As you're also mentioning earlier on, there was no information with the Foreign Affairs Ministry about these workers from Punjab in Kuwait who are now being who claim that they're being hounded. Well, you see, the problem is actually a much larger one. Even recently, when the MEA was discussing the evacuation from Iraq, we were aware that the MEA had to admit that they actually do not have records of all the Indians who are there because of several fly-by-night operators, and in this situation also it shouldn't then come as a surprise to us that the MEA is still out of the loop, even though now it's promising that it will get into it and give us a formal stand as early as possible. So it's a part of a larger problem. Insofar as the procedure itself is concerned, the local embassy will have to actually get in touch with the authorities out there, because in this case the allegation at least is that the Kuwaiti city-state is siding with the Egyptian side and is hounding almost 600 to 700 Indians for the murders of 2 Egyptian nationals out there. So it will involve a lot of policing, it will involve legal paperwork to be executed, after which the matter will come to Delhi, and then Delhi will have to take a formal stand. Of course, evacuation is an option. Of course, several options are on the table, but if these Indians have been charged with something as serious as murder, then one will have to really wait and watch just to what extent is the Kuwaiti administration willing to accommodate the concerns of the Indian administration. Right, Jugal, not to get ahead of ourselves, but this could also have a very adverse impact on the Indian community, a large part of the Indian community who are working as laborers in Kuwait itself, because this is definitely going to come out in the media in a very big way from now. Well, there's no doubt. In fact, this isn't the first, and I'm afraid the way things are, it won't even be the last, of a situation where Indian interests are being harmed, and the government has been tardy, at least to the initial point of starting its response. So, as I said, it's a larger problem. The Indian administration is still to actually crack down on these fly-by-night operators. Several occasions we've seen when these people who are on the wrong side of the law do not even have the basic documents and paperwork towards getting an Indian visa back home. So it's a very muddled situation out there, and one of course doesn't know. It's too early in the day to even get all the details, but just what is the way in which these people were working there? Do they have Indian authorized permits to go there or not? Several questions remain, and as we just said, that the MEA also as of now has no information. It's just going to start finding out the information from its embassy in the Kuwaiti city-state. Absolutely. The only information that we have is also trickled down. We spoke on the telephone line with 2 of the laborers. Let's go back and listen into what they said, making an appeal to the Indian government to help them. जल्द से जल्द हमारे जो आदमी पकड़े हुए हैं तो पुलिस वाले हैं, और रात को आदमी को उठा के लेके जाते हैं, पता नहीं चलता कब आते हैं, कब आदमी को उठा के लेके जाते हैं, और हमारे आदमी का कुछ भी पता नहीं है कौन से वो उनको उधर लेके गए, पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं, बता भी नहीं रहे कुछ, और हमारी कोई भी हेल्प नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये है, हमको उनका जुबान नहीं आता। जो कंपनी का जो जितना भी आदमी है कंपनी का, वो सब आरपी लोग हैं, ठीक है। उनको कुछ भी, जो हमारे जिसके साथ जो बात हुई है वो मसर के लोग हैं, मिस्री है वो, और जो सुनवाई हो रही है ज्यादा सबसे उनकी हो रही है, हमारे आदमी को कोई पूछ नहीं रहा। और हिरासत में लेके गए थे 2-3, इधर से अभी 17 आदमी है, उधर जो है उधर हिरासत में है 17 आदमी है, उनको कोई भी मालूम पता नहीं है कितना, कुछ भी कोई बताने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी ऐसे नहीं है, कंपनी को हम बात क्या करें उनसे, उनको अरबी आती है, हमको आती नहीं,
ना ही कोई आया है, इधर बात करने भी कोई भी नहीं आया। और 3-4 दिन से खाना किसी ने सो के नहीं देखा। कोई भी गाड़ी आता है इधर रात को, पूरा आदमी उठ के बैठ जाता है कि शायद पुलिस वाला आ गया, ऐसे होता है। तो अभी हमारी सिर्फ यही दरखास्त है सरकार को, जो भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सबको यही दरखास्त है, हमें यहाँ से जल्द जो आदमी हमारे फंसे हुए हैं पुलिस स्टेशन में और जो इधर, हमको जल्द से जल्द इधर से निकाला जाए। कम से कम इंडियन 600 आदमी है इधर इंडियन। अरेस्ट का खतरा नहीं है हमको, अपनी जान जाने का भी खतरा है। वो लोग पागल हैं, वो कभी भी आ सकते हैं इधर, मसरी लोग हैं ना जो, और हमें अपनी जान का खतरा है बस। All right, I'm being told we're joined in live by Jasbir Singh, one of the laborers in Kuwait over there. Jasbir जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले तो ये बताइए आप एग्जैक्टली कहाँ पे हैं और वहाँ पे क्या हालात है? हेलो जी जसबीर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं वहाँ के क्या हालात हैं इस टाइम पे और आप अभी किस कंडीशन में हैं? हम मैडम अभी बहुत मुश्किल में है। हम पूरा आदमी इधर 3 दिन हो गया, हमारा कंपनी का कोई भी विभाग इधर किसी का कोई खबर नहीं लिया, और हमारे लोगों को बहुत पिटाई किया है ये मिस्त्री लोगों ने, और हमारे आदमी जख्मी भी है। लेकिन हमारे आदमी को हॉस्पिटल लेके गए, उसका इलाज करके उनको सबको जेल में लेके गए, और कैंप में से सबको रोज 5-6 आदमी लेके जाते हैं। मालूम नहीं है वो किधर लेके जाते हैं, अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला। हमारी यही दरखास्त सरकार और मोदी साहब को हमारी हेल्प की जाए, जो हमारे भाई जेल में है सबको छुड़ाया जाए और हमको सही सलामत सबको इंडिया भेजा जाए। ठीक है जी। अभी जसबीर जी आप कहाँ पे हैं? हम देख रहे हैं आपके पीछे और भी आपके साथी हैं, आप किस जगह पे हैं? हम देख रहे हैं कि काफी डरे हुए आप लग रहे हैं। आज इस टाइम कंपनी है और 604 नंबर रोड सीखा पे है, हम कब रोड पे हमारा कैंप है इधर। जी आप हमें ये बताइए कि कितने आपके साथी मिसिंग हैं अभी वहां से? हमारे मैडम अभी 15 आदमी नहीं है इधर कैंप में, जो है से पूरा पुलिस की स्टडी में है वो। जसबीर जी आप एक जगह पे अपना कंप्यूटर रख दें या फोन जिससे भी आप हमसे संपर्क में हैं उसको एक जगह रख दें। हम चाहते हैं कि हम आपसे विस्तार में पूछें और बात करें कि वहाँ पे चल क्या रहा है। आप हमें बताइए आपके कितने साथी वहाँ पे मिसिंग हैं और आपकी किसी उधर की अथॉरिटीज क्या कर रही हैं इस वक्त? हम इधर की अथॉरिटी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हम कल वैसी भी गए थे, वैसी वालों ने हमारी कुछ बात नहीं सुनी, कोई भी हेल्प नहीं की, और इधर जो भी हमारे आदमी को लेके जा रहा है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना अभी तक कंपनी ने कुछ हमारे लिए किया है, ना हमको कंपनी ने इधर आके पूछा है कि आप कैसे हैं, खाना खाया है या नहीं है। हम बहुत मुश्किल में हैं। हम सिर्फ पूरा 3 दिन में सब आदमी डरे रहे हैं, कोई भी आज तक सो नहीं पाया। जसबीर जी क्या आपको इंडियन गवर्नमेंट की साइड से यहाँ से एम्बेसी ने कॉल करने की कोशिश की है अभी कुछ घंटे 1-8 घंटे में? मैडम अभी तक हमको इंडिया की एम्बेसी की कोई कॉल नहीं आई। हम सिर्फ इंडिया तक ही हम बात कर रहे हैं आज तक से जी, इंडिया तक हमारा बात पहुँचाया जाए। जसबीर जी और मोदी साहब का हम मैं चाहूंगी आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे। चीमा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर चीमा, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। वी वांट टू टेक इन योर रिएक्शन। व्हाट विल द गवर्नमेंट डू टू ब्रिंग दीज लेबरर्स हु आर नाउ इन कुवैत एंड क्लेम दे आर बीइंग हाउंडेड बाय द अथॉरिटीज? अभी आपके चैनल पे जो न्यूज प्रसारित की जा रही है जी, उसी के बेस पे मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर से अभी बात की है। हमारे पास इससे पहले कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं आई, इसलिए हम अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपना रास्ता बना रहे हैं और उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी बात है उसका पता करें और जो भी इन लोगों की मदद हो सकती है वो मदद करें। जी और क्या आप इनको आश्वासन दे रहे हैं? अभी हमारे साथ लाइन पे ये बने हुए हैं एक लेबरर, उनके साथ कई और उनके साथी भी हैं। कितनी जल्दी एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, बिकॉज उनको वहाँ पे खाने पीने की भी बहुत दिक्कत है। हम तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अभी उनसे रास्ता बनाने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम व्यक्ति तौर पर भी भेजेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी मदद की जाए। जी, तो आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं हेडलाइंस टुडे पे कि आप वहाँ पे बात करेंगे चीफ
मिनिस्टर साहब से और आप एक्शन की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द? अभी थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री साहब बात करके ये सारी बात उनके ध्यान में लाएंगे और इनकी हेल्प करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू मिस्टर चीमा फॉर स्पीकिंग टू हेडलाइंस टुडे। जसबीर, क्या आप हमारे साथ अभी बने हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल बने हैं जी। आपने सुना जब हेडलाइंस टुडे ने ये रिपोर्ट दिखाई है तो उसके बाद हम आपको एक तो ये बता दें कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करेंगे। और अभी ये पंजाब के मिनिस्टर थे फोन लाइन पे, ये कह रहे थे अभी मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों के पास मदद पहुंचे। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पूरी बात शुरू कैसे हुई, कितने लोग अभी तक अरेस्ट किए हैं कुवैती पुलिस ने? मैडम, ये सबसे पहले झगड़ा इस बस में बैठने से हुआ। ठीक है, हमारे इधर मिस्री हैं और पंजाबी हैं। पहले मिस्रियों ने हमारे लड़के को सीट में बैठने से मना किया, उस बात से झगड़ा हुआ। बाद में जो बस से उतरे उनको खूब पीटा मिस्री लोगों ने। अच्छा, इस बात से झगड़ा हुआ और इसका इल्जाम अब आप पे आ रहा है? इंडियन ये इल्जाम हमारा, हाँ जी, इंडियन पे सब पे आ रहा है। अच्छा, तो आपने हमें ये भी बताया कि कुछ लोग तो अरेस्ट हो गए हैं और कुछ लोग जख्मी भी हैं। तो वो जो जख्मी लोग हैं वो कहाँ पे हैं? आप कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ ले गए हैं? मैडम, हमको नहीं पता वो पुलिस कहाँ लेके गई, उनको अभी तक पता ही नहीं चल रहा। हॉस्पिटल में जो आदमी थे उनको भी पुलिस लेके हथकड़ी लगा के लेके चली गई सबको। अच्छा, और अभी आप कहाँ पे हैं? ये क्या जगह है जहाँ पे आप हैं? हम अभी सलीबिया में हैं, कब्द रोड 604 नंबर 604 रोड नंबर। अच्छा, ठीक है। आपकी हिफाजत के लिए एग्जैक्ट डिटेल्स भी आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी को ना बताएं, क्योंकि अभी आप लोगों पे खतरा भी बना हुआ है एक तरह का। कितने साथी हैं आपके साथ अभी इस वक्त? हाँ, इस वक्त हमारे साथ 500-600 आदमी हैं अभी जहाँ पे। 500-600 और राजस्थानी हैं, आंध्रा वाले हैं और इंडियन पंजाबी हैं, पंजाब यूपी कितने दिनों से बिहार के सब हैं। और कितने दिनों से आप लोग ऐसे छुपते फिर रहे हैं, अगर एक तरह से इसको कहा जाए, क्योंकि आप लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है? कितने दिन हो गए आप लोगों को इस तरह? हमको मैडम आज तीसरा दिन है। अच्छा, और आप कब से हैं कुवैत में? आप कब से काम कर रहे हैं? हमको मैडम अभी 9 महीना हुआ इधर आए को। तो अच्छा। कुछ आदमी पहले के भी हैं इधर, पुराने आदमी भी हैं। हम तो अभी नए आए हैं इधर जी। और किसी को 2 महीना हो गया इधर आए को, किसी को 1 मंथ हुआ इधर आने को। और अब ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ और हम उम्मीद करते हैं जल्दी एक्शन हो और आप लोगों के लिए वहाँ पे हेल्प आए, कि ये आपने पिछले 3 दिन में क्या कोशिश करी कि ये मैसेज इंडिया तक पहुँच जाए? ये वीडियो जो हमें मिला है, इसके अलावा और भी कोई कोशिश की है? हाँ, हमने मैडम अखबार में भी दिया, अपना जगबानी में, अजीत में, सबसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन आज आपसे संपर्क हुआ। चलिए गुरमेश जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हम आपसे राब्ता रखेंगे, कुछ देर में हम आपके पास फिर लौटने की कोशिश करेंगे। दैट वाज वन ऑफ द लेबरर who is claiming that 600 to 700 laborers along with him are being hounded, absolutely scared. This is first on headlines today. We promise to get you more updates as and when we get them, the response from the government as well. With that